attend that. And then one of my teacher, who was music teacher, conducted a relation program in the school. So I got my self-relation there. But eventually we forgot what we attended or what is Saj Yoga. Then years passed, days passed. And then 2011, I was suffering from slip disc. I used to do some stunts like, I don't know what it's called, but flip back. Run, go on the ball and jump back like that. So it hit me hard in the spine and got slip disc. So I went to many doctors in my town, which is Latur. Then one of the surgeons suggested to do the surgery. Ultimately, we need to do some surgery, and that's the only way, he said. Then one of my teacher suggested me to attend the meditation. So I went back to the school. I remembered that we attended this program in 2008, and then that teacher started conducting weekly meditation in his house. So we were around 15 or 20 students who used to go there regularly. Initially, we all know we get many blessings of Shri Mataji, and Shri Mataji keeps special attention on each seeker who is being part of the collective process. So I used to feel Sahasrara like very big connection and continuously open door. So my whole attention was grabbed by Kundalini, might be on Sahasrara, and full of vibrations on both the hands. So that state was continuously there with me, constant, and I was only feeling joy. Tremendous joy and tremendous vibrations. There is no explanation in words for it. I used to sit in meditation for like 2 hours, 3 hours, but still that state was there. So I enjoyed that thing for a long time. Then came to Pune in 2013 for doing my engineering college, attending my engineering college, and I met these people, Mr. Balaji, Shreyas Tata, and so I met with the Pune collective, gradually started going to Pratishthan regularly. My college was in Alandi, which is place of Saint Naneshwara. So it's quite far from the Pune city, and Pratishthan is very far if I need to travel by public transport. So I used to leave in the evening around 4:30 or 5 p.m. and then reach Pratishthan for the evening meditation. And when I get last bus from the bus stop in Pune Central City, I used to reach till my room around like 12:20 a.m. in the night. But that meditative state and the feeling of Kundalini and the joy was very strong. So that is the only thing I feel matters very much. Whenever I remember those things, I really want to again go back into that depth of meditation, and gradually meet new people. I used to attend relation program every week while being in college. Saturday, Sunday, engineering colleges have holidays, we know. So attending meditation and the relation program. So all my friends were Saj Yogis only till now. So that's how I maintain myself in the collectivity, or Shri Mataji blessed me to be in the collectivity till now. And then I filled my marriage form in Saj Yoga. Last year I got a match in Kabila, and then I got married in Nagpur last year. So I think she's doing some work around.
माईकवर बोलो, आवाज जाईल. बर नाव घे, ते कपलेट घे, मग येतील वहिनी. अनुराधा मैं था नाही, नीट नाही, मी लांब होतो. खूप छान घेता दुकान आहे. आउटसोर्स पण करतो ते 2-3 जणांना ते. ते- चुप गए हो तुम कहाँ होऊ दे काका, होऊन दे काका. चल नाही नाही, तुमच्याकडून पण होऊ दे. मला येत नाही गाणं. स्पीकरवर ते लाव, म्हणजे आवाज येईल. अरे आहे का पुण्याला गेली माईक वहिनी पर्यंत त्यांना देऊ शकतो, म्हणजे पार्ट 2 होऊन जाईल. Dada asked me to speak about the marriage, but I forgot to mention about one special thing. I'll talk about marriage later on, but this is very special to my heart. Every time we used to conduct the meditation seminar or class where there is no yogis at all, I personally could smell the roses or majmua. So sometimes I used to doubt की maybe मी लावलं असेल किंवा माझ्या हाताला चुकून राहिलं असेल. But there was few moments for sure की गाडी चालवताना एस्पेशली की काही ठिकाणी जर सेंटरवरून गाडी गेली की तिथून ऑटोमॅटिकली वास यायला लागायचा. अँड आय कुड फील द कुंडलिनी रायझिंग अबव माय हेड. And that was the time I felt that Shri Adishakti is right there in front of me or in front of the building where the meditation classes were being done. So ही जी मोमेंट होती ही कुठेतरी खूप स्पेशल आहे माझ्यासाठी. आणि एव्हरी टाइम you don't have to see her physically. She is there all around you, in form of fragrance, in form of vibrations, in form of light, in form of energy. So that is very special to me, and I think somewhat everybody will connect to my story in that relations. And coming to the point about the marriage, so there's a lot of stories around about the Sahaj Yoga marriages. But my story is very brief. It was announced, but we couldn't meet or we couldn't conclude as such because there was some kind of miscommunications. But eventually it got registered and we are doing so far so good. I believe I totally forgot now. Not sure. It was 2016 or 18. Yes. Thank you. So it was matched twice. The first one was in Kabela. Yes, the Kabela. So she's from Ahmednagar. Yes, Upal.
परमेश्वरी रिया वहिनी इथूनच आवाज द्या तुम्ही डायरेक्ट काकांच्या आवाज जाऊ दे, परत ते आठवण रोमचं सगळं इटलीचं येईल. काका तुमच्या मस्त मंजूळ आवाजात. हा परमेश्वरीत ना, कारण त्यांना तो फील येईल मॅच वाला आणि लगेच वहिनी येतील खाली. नाही प्रॉब्लेम नाही, ते येत नाही त्यांच्या आवाजाने खाली म्हणून म्हणतोय. बरं ठीक आहे. मग काका आता आलाय माईक तुमच्याकडं. ठीक आहे काकू, ठीक आहे काकू. आले का? अनुराधाला बोलवा. आणि उमेश जिजू राहिले तिथे सावलीहून. अच्छा ओके. हो त्यांचं पण राहिलंय. आणि उमेश जिजू राहिलेत. अनुराधा and रिया. आपले रश्मिताई. ते आप आके बैठ जाओ. काका रश्मिताई पण राहिलेत. जो आया उनको पकड़ के बिठाओ. काका रश्मिताई पण राहिले. रश्मी आणि उमेश दादा, राहुल दादा, रश्मिताई आणि उमेश जिजू पण राहिले. क्या ती अनुराधा क्या कुठं अनुराधा? ओ याव. सांगून ठेवा सिलेबस सांगते. दादा म्हणतात ते कॉर्डलेस आहे डायरेक्ट आत घेऊन जायला. कॉर्डलेस आहे डायरेक्ट आत घेऊन. अच्छा तब तक आप शुरू तक की. पेशा आते जी, मेरा नाम अनुराधा है. मुझे सहयोग मैं जॉब करती थी एक क्लिनिक में, तो जो वहाँ के डॉक्टर थे वो करते थे सहयोग. तो वहाँ पे मैंने जॉब शुरू किया. फिर धीरे धीरे उन्होंने मुझे रियलाइजेशन दिया, डिटेल में बताया क्या होता है. इसके बाद रेगुलर हुआ. थोड़ा टाइम लगा तो धीरे धीरे फिर रेगुलर करना शुरू किया. बट फैमिली में कोई नहीं करता, सिर्फ मैं अकेली. आपका प्रोफेशन यानी आप डॉक्टर के यहाँ पे एज अ रिसेप्शनिस्ट. और ये कब का है? मैं उनके पास लगी तो 2016 में थी, पर रियलाइजेशन 17 या 18 में हुआ. 17. और आपका जो इनके साथ संलग्न होने वाली जो बात है, ये कब आपने डिसाइड किया? पहले बताओ सहज में कैसे आ गए? हाँ कैसे है सहयोग? मैरिज कैसे और इन शॉर्ट. हाँ इन शॉर्ट. हाँ सहज में आने का प्रोसीजर तो यही था. लंबा भी चलेगा. काका आप अवॉइड करता म्हटलं तुमच्यासाठी सगळेजण थांबलेले. आता सगळ्यांना झोप यायला लागले. हा मग तेच ते त्याच्या पहिले. सहज में तो मैं ऐसे ही जुड़ी कि रेगुलर ध्यान हुआ, सेंटर हुआ. उसके बाद कुछ कुछ होता है, जैसे सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है, परीक्षाएं होती है. वैसे हुआ कुछ कुछ घर पे लाइफ में, क्योंकि उस टाइम पे कॉलेज गोइंग भी थी, तो छोटी छोटी चीजें होती रहती है.
तो फिर वैसे ही कुछ कुछ एक्सपीरियंस मिले, फिर उसी के प्रति, श्री माता जी के प्रति भक्ति बढ़ी, समर्पण बढ़ा, और एक तरीके से वैल्यू पता लगी कि क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। तो फिर जुड़ गए फिर सहज में शादी का हमारे सेंटर में एक भैया ने फॉर्म भरा था, तो फिर वहाँ से पता लगा कि सहज में मैरिजेस भी होते हैं, उससे पहले पता नहीं था। तो फिर घर पे शादी की बात होती रहती थी, तो फिर हुआ कि अगर अरेंज मैरिज ही करनी है तो फिर किसी और को क्यों दिया जाए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि किसी इंसान को नहीं पता हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा। तो अगर अरेंज मैरिज ही करनी है, आंख बंद करके ही किसी पे ट्रस्ट करना है, तो श्री माता जी के ऊपर क्यों ना छोड़े इस चीज को। तो इसीलिए फिर सहज मैरिज। बहुत अच्छा. श्री माता जी। अहो कुठे गेला त्या वहिनीकडेच घेऊन जायला श्रद्धाताई इथं, श्रद्धाताई राहुल दादा, श्रद्धाताईला पुढे घे, पुढे ते जेवढे लांब बसले तेवढे पुढे घ्या. काकांचं ऐकायचं म्हणून लवकर लवकर करा. काका सिनियर आहेत ना, म्हणून सर्वात लास्ट. ताई बसून बसून निवांत एकदम फील लाईक होम. हा चालेल, ती चालेल दादा, काका येते परफेक्ट. हा रियाताई येतील. जय श्री माता जी, मेरा नाम श्रद्धा पाटिल है. मैं पंढरपुर से हूँ. 1993 में मेरी मम्मी पापा ने सहयोग मिला उनको, तो तब से हमारे घर पे सहयोग है. लेकिन उस टाइम पे मैं बहुत छोटी थी, 10 साल कुछ ऐसे, तो उतना कुछ समझ में नहीं आता था. लेकिन एक दिवाली पूजा थी जो सेंटर पे थी, जो अपना जो लोकल सेंटर होता है उस टाइम पे. तो उस टाइम पे मैं 11th क्लास में थी, मतलब 15-16 ईयर्स. तो उस टाइम पे फर्स्ट टाइम मुझे वाइब्रेशंस फील हुए थे. उससे पहले तो जस्ट घर पे सब लोग मतलब करते, जाना है करना है वैसे ही था. तो उस टाइम पे फर्स्ट टाइम वाइब्रेशंस मुझे फील हुए थे. तो उसके बाद से फिर श्रीमती के लिए भक्ति, वो सारी चीज़ें अपने आप बढ़ी. और 1998 में मैंने जब गणपतिपुले में सहज मैरिजेस देखी, तो उस टाइम पे मुझे लगा कि नहीं, उतना तो क्या बोलते कि म्हणजे ती पात्रता आणायला पाहिजे कि अपना भी सहज मैरिज होना चाहिए. तो उसके बाद फिर वही था कि अगर शादी करनी है तो सहज मैरिज करना है. फिर 2007 में मेरा सहज मैरिज हुआ. तो उसके बाद से फिर चल रहे हैं सहज. जय श्री माता जी. अच्छा, सहज मैरिज जो हुआ, उनके आपके बेटर हाफ के बारे में कुछ बताइए, वो कहाँ से है? अच्छा, वो भुसावल से है प्रॉपर. उनका नाम दिनेश पाटिल है और वो भुसावल से है. आता काका वेळ नाही. Because everybody is feeling sleepy. तुम्ही झोपू नका, थकलेत काल खूप. लीना तत्री is still on the job. Still on the job, yes. Both of them. अच्छा, coming to हमारे वाइफ को बताया how we have come to सहज होगा, so that I did not repeat. But ये बात सही है that she read in the newspaper very small advertisement. On that page there are so many ads. So to see in that small ad,
and then decide to go is something different, unique. So we were new in Delhi, and I used to go to office. Son used to go to school, so she used to see paper in detail. And he said, I want to go to for this program of Simat. We had never heard, not read. And she's saying, this I want to go. तो मैंने देखा उस समय दिल्ली में 10 या 12 सर्जरी होंगे, विचारों ने उतने अपने कंट्रीब्यूशन से उतना एडवर्टाइजमेंट दे दिया पेपर में. तो लेकिन ठीक है ठीक है ठीक है वो परमेश्वर है, क्या करें? कड़क काका एक नंबर, उसी का क्रिएशन है और वही डिस्ट्रॉय कर रहा है. एक नंबर, एक He knows what is this and what to do, नंबर. सल्यूट. and he has done it. ग्रेट. ठीक है ठीक है ठीक है. तो कहाँ तक आए थे हम? हाँ हाँ 10-12 सही जी थे. 10-12 सर्जरी बेचारों ने और उस समय एडवर्टाइजमेंट में भी बहुत खर्चा था. आजकल तो फुल पेज में सो मेनी कंपनीज आर गिविंग फुल एड. तो इनको मैंने कहा ऐसे ऐड तो बहुत आते हैं, इतने गुरु है, इतने क्योंकि सौची का अम्मा जी है, तो ऐसे जाने लगे तो कैसे होगा. एंड आवर फादर वाज फ्रीडम फाइटर. And he was Gandhi follower, and he never went to any mandir, which I did not see. Nor he used to do any that big puja part in the house. But mother used to do. So we used to think that ये तो लेडीज को कुछ काम धाम नहीं करते होंगे. So and now we were forced to now we were forced to do any puja, go to any मंदिर, तो वो था नहीं. और फिर आप ये कह रहे कि मैंने ये ऐड पढ़ी है, मुझे जाना है. तो anyway we were new in Delhi. That was 84-85. तो मैंने कहा मैं तो नहीं आऊँगा, क्योंकि आई हैव नेवर गॉन टू एनी गुरु आउट ऑफ द स्टेट, नॉट इवन टू एनी टेम्पल. तो दूसरा एक अट्रैक्शन था कि वहाँ नई नई कार खरीदी थी हमने. दिस वॉज 84-85. उस समय एक कार खरीदना मीन्स यूज टू फील वेरी बिग. अभी आजकल कुछ नहीं. ओनली देयर वर 2 कार्स, अम्बेसडर एंड फिएट. तो फिएट कार खरीदी थी. तो नई कार नई नहीं थी, बट मेरे लिए नहीं थी. तो मुझे लगा ये अच्छा कि मैं इस पर ड्राइविंग करूँगा, इनका भी काम हो जाएगा, मेरा भी हो जाएगा. एंड it was near Parliament House. There is one well-known hall called Maulankar Hall. Maulankar, he was the first Lok Sabha सभापति. So उसके नाम पे वो हॉल बना है उधर. It is a very prestigious hall. वहाँ से माता जी के 5 दिन कंटिन्यूस प्रोग्राम थे, 6:45 से लेके 8:30. तो और वो हॉल मुझे मालूम था कि वो हॉल मेरे ऑफिस से नजदीक था और ट्रैफिक के अगेंस्ट था. इवनिंग में है, ट्रैफिक इधर आता है, हम उधर जा रहे हैं. मैंने कहा गुड मेरे ड्राइविंग के लिए. तो मैंने इनको छोड़ दिया उधर. आई वेंट टू माय ऑफिस. वहाँ से वहाँ एक्चुअल वॉकिंग डिस्टेंस था. तो अब दूसरा ये था कि after doing my engineering,
1969. Most of you may not have been born. I got Japanese scholarship. All India level, they selected 2 engineers to go to Japan for 1 year. So I was one of those 2 that time. So I know Japanese language. So I stayed there 1 year. And Japan में they are all nobody believes in God. तो वो भी सीख के आए थे हम लोग. फादर से ऐसा कोई था नहीं, उधर से था. Your work, you should be very sincere, very prompt, do everything 100% work. परमेश्वर दादा तो उस मॉडल का हॉल में और वहाँ पार्लियामेंट हाउस के पास ही है. सो दूसरे टाइप की क्राउड वहाँ रहती थी आसपास. तो इनको मैं छोड़ता था और मेरे ऑफिस में जाता था. फिर मेरे साथ जो काम करते थे उनको भी बुलाता था. वो नाराज हो गए, ये शाम को क्यों बुला रहे काम करने के लिए. तो एनीवे तो इनके साथ तो मैं गया नहीं. ये और हमारा बेटा दोनों गए. शायद पहले दिन ये भी आया था खितरी से. तो उनको वहाँ छोड़ दिया. दो मैं गया नहीं. फिर लेने के लिए वापस कार लेके आया, क्योंकि मेरा शौक था कार चलानी है. तो मैं जब वहाँ आया तो इन प्रोग्राम होता था और ये लोग गाड़ी में बैठते थे. तो मुझे इच्छा हुई मैं श्रीमाती जी को जब हॉल से बाहर आ रहे कार में बैठ रहे अपने, तो श्रीमाती को दूर से देख तो लूँ, वो नहीं है. लेकिन वो नजरिया ऐसा था कि ये सारे गुरुज है. तो मैंने देखा तो जो लोग आ रहे थे श्रीमाती साथ, मैंने देखा ये तो अलग टाइप का क्राउड है. थोड़ा लगा कि ठीक है, ये तो इतना कुछ ये नहीं है, डाउटफुल. फिर ये लोग दोनों इनको फर्स्ट डे ही शी एंड आवर सन बोथ फेल्ट फुल वाइब्रेशंस. और घर आके दोनों कार में ही बात करने लगे. मम्मी तुझे ये फील हुआ क्या, मम्मी को ऐसा हुआ क्या, तुझे ऐसा हुआ. और इन्होंने पहले दिन एक छोटी किताब, परिचय पुस्तिका, इंट्रोडक्शन, वो लेके आए थे. और कार में दे वर वेरी हैप्पी. फिर घर जाने के बाद ये सो गए. मैं रात को उठा 1 बजे और वो परिचय पुस्तिका मैंने पढ़ाई, क्या ला रहे, घर में रखना है नहीं रखना है. मैंने वो पढ़ लिया पूरा. तो इट वाज गिवन रेफरेंस टू ज्ञानेश्वरी, गिवन रेफरेंस टू गुरु नानक वगैरह वगैरह. तो मैंने सोचा कि पहले ये रेफरेंस भी देख लेते. तो इनको पूछा मैंने कि ये रेफरेंस तो पढ़ो पहले. तो वहाँ एक दिल्ली में महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट की लाइब्रेरी है, नियर कैनॉट प्लेस, इफ यू नो, या तो सब आप जानते होंगे, वहाँ है. तो वहाँ फिर इनको लाके मैं देता था गुरु ग्रंथ साहब की कॉपी, ज्ञानेश्वर की कॉपी, ताजबोध. तो और ये अपना अंडरलाइन करके तैयार रखती थी. तो ये तो सब ठीक चल रहा है मामला. मैंने कहा अभी आई वाज थिंकिंग कुछ तो डाउट मिले, सो दैट आई अवॉइड. फिर दूसरे दिन गए तो ये दिलीप भी ज्वाइन किया. आने के बाद तीनों कर रहे, आप ऐसा करो, ये फील करो. आई वॉज ओनली लेफ्ट अलोन इन द हाउस. फिर मैंने डिसाइड किया मैं तीसरे दिन जाऊंगा. 5 दिन था ना, स्कोप है अभी. तीसरे दिन गया मैं. जाने के बाद मैंने कहा, इनको नहीं बताया कि मैं हॉल में आ रहा हूँ,
इनको लगा ये मुझे छोड़ के ऑफिस चले जाएंगे. Sorry, I will speak in English. So, okay. Sorry. So, the third day, I did not tell them that I want to attend. I just dropped them. They went and sat. Maybe fourth or fifth row. The hall was very prestigious hall. Very good chairs till last, and maybe 1,000 or 1,500 capacity. So I went and sat in the last row because people were sitting in the front. The last row I used to feel very late. So I sat in the last row. So I will see now what is done here. मुझे लगा कि मैं कहीं ना कहीं पकड़ लूंगा. तो श्री माता जी जो बोलते थे मैंने उल्टा शुरू कर दिया. आँख बंद करो, बोले नहीं हम नहीं करेंगे. आप ऐसा करो, हमला हाँ तो हम हमारी इच्छा जब होगी तब करेंगे. ऐसा कुछ ये था. देखा अगेन कोई डाउटफुल हुआ है नहीं. 3 दिन चले गए. मैंने लगा अब और ये तो ज्यादा. They were very happy. We were getting very good sleep, feeling very comfortable, nice, feeling hungry also. वो सब ठीक ठाक. तो रिजल्ट्स तो अच्छे लग रहे. So then I thought that fourth day I will follow what Shri Mataji says. So and I was expecting कि ये मुझे कहें कि आप भी चलो. इन्होंने मुझे चलो कहना छोड़ ही दिया. क्योंकि ये तो आने वाले हैं. फिर मैं आई वाज एक्सपेक्टिंग कुछ कहेंगे. फिर मैंने बोला मैं आ जाऊं. तो बोला आ रहा है तो आ जाओ. तो आके इनके साथ उसी रो में बैठ गए. बैठ के फिर हमने पूरा मैंने कहा इफ आई डू एनीथिंग आई विल डू सिंसियरली. आई विल डू ऑनेस्टली. दैट वाज आल्सो आई हैड लर्न फ्रॉम जापान. और मैंने जो श्रीमात ने कहा पूरा ऑनेस्टली सिंसियरली किए. फिर श्रीमात ने पूछा आपको ये फील हुआ वो फील हुआ. वो मुझे फील हुआ. फिर श्री माता जी उठ के स्टेज से प्रोग्राम होने के बाद then she was walking out near the door, and normally some people just go away because they want to rush home, but 50% crowd they will hang around near the stage. तो हम भी वहाँ उस क्राउड में लास्ट खड़े थे. श्री माता जी still visible. She will walk, and when she goes then we will go. So Shri Mataji stood up and she was walking. Then she just in Marathi she asked me, काय आज सगळं ठीक वाटतंय का? पटलं की नहीं? Did you feel? अब दिल्ली में क्राउड जो है वहाँ महाराष्ट्र में बहुत कम रहते हैं और डायरेक्टली हाथ करके पूछ रहे मुझे. बस दैट इज द क्लिकिंग पॉइंट. फिर 5th डे वॉज द लास्ट डे. मैंने कहा अभी तो बहुत सिंसियरली करना है. सो फ्रॉम दैट डे वी हैव बीन डूइंग वेरी सिंसियरली. और एंड दिस इज वेरी ट्रू इन सहज योगा. वी शुड नॉट डू एनीथिंग सुपरफिशियली दिखाने के लिए. It is for you. It is between you and Shri Mata. So ये शुरुआत हुई. तो अभी 41-42 साल हो गए. मुझे ये पठारे की बहुत अच्छी बात लगी. If there is no collectivity, you create the collectivity. Very good. And I think Dilip has done the same thing. In Khetri there was 0. He created a collective. Then कुठलं दुसरं गाव? बिहार.
Mosabani, zero collectivity. He created collectivity, including his own boss. And then in Goa, no collectivity, zero. And while leaving Goa, there were 200 surgeries. So this matches with what you say. So please do the same in Canada. There is a big scope. And just because of Canada, I want to give reference. There is one Bank of Montreal. Their major operations in USA. So as per USA standard, it is the 5th largest bank. And recently, yesterday, auntie ne bataya hoga, our son is the CFO of BMO, Bank of Montreal. So if you go to Toronto, you can meet him. He will provide you some collectivity. His official name is Rahul Nalgirkar. We call Ram. Srimati ji has given him name. His name is also Rahul. And he is global CFO. ग्लोबल CFO. हमने CEO उसका and नाम number राहुल 2 is रखा he. था, लेकिन जब वो 12th में था तब श्री माता जी ने कहा कि हम इसका नाम चेंज कर देंगे, तो उसका नाम चेंज करके श्री माता जी ने राम रखा है। श्रीमती ने पूछा कि राहुल सॉरी राहुल क्यों रखो, why you have kept the name Rahul? So that time there was a इंडिया में होता है ना एक बहुत क्या बोलते हैं फैशन हाँ एक ट्रेन है वही नाम चलता है। नहीं, वो गौतम बुद्ध का जो बेटा था उसका नाम राहुल था, तो उस पीरियड में पर्टिकुलरली राहुल नाम बहुत लोग रखते थे, तो हमने भी वो रख दिया। तो श्री माता जी ने कहा कि नहीं, हम उसका नाम चेंज कर देंगे। जो गौतम बुद्ध का लड़का राहुल है, उसने बहुत सफ़र किया, लेकिन मेरे बच्चे, मैं माँ हूँ, मेरे बच्चों को मैं सफ़र नहीं होने दूंगी, हम इसका नाम चेंज कर लेंगे। उसका नाम चेंज कर दिया, अब हम राम बोलते हैं। तो काफ़ी लोग दिल्ली में बोलते थे, आपके 2 बेटे हैं क्या, एक राहुल और एक राम? इसका नाम भी राहुल है, इसने भी चेंज कर दिया है नाम। अभी क्या नाम कर दिया? राही. राही। अच्छा, ल निकाल दिया। Good, good. So I think फिर स्टोरीज तो बहुत है। You people have to तुमसे झोंक खराब करते हैं। भजनाचं फेवरेट भजन शेवटचं. प्रभू माझा. प्रभु अच्छा वो भजन का पूछ रहे हो, भजन जो गाकार थे तो इन्होंने पता नहीं मेरे चेहरे पे देखा कि आपका फेस चेंज हो गया। आप फेस तो श्रीमाता जी का नाम सुनते चेंज हो जाता है। लेकिन उसके लिए भी है स्पेशल स्टोरी है। क्या था कि दिल्ली में कुतुब न्यू टेम्पल बोलते हैं उसको, that was constructed, and during construction of the temple I had a major contribution. The whole work was with me as a project manager. तो पूरा बना के when it was ready, श्रीमाता ने कहा था कि दिल्ली में जब भी श्रीमाता आते थे, श्रीमाता used to stay in some no, first she used to stay 83, 84. साड़वे ब्रदर। हाँ, साड़वे. So she used to stay with her brother, NKP Salve, who was a minister in the government of India. लेकिन but he was Shrimati ji never liked him. I can say openly. Because he was a congressman and also joined with many corrupt ministers. So Srimati said, I'm not selling force to stay with him. I don't want to stay with him anymore.
So Shrimati started staying in guest house. जैसे राजेश शाह का गेस्ट हाउस है, देर अदर कंपनीज गेस्ट हाउस. सो फिर श्रीमती ने बोला कि नाउ अभी मैं कब तक गेस्ट हाउस रहूँगी, अपना लैंड लेके रखा हुआ है, वहाँ बिल्डिंग बनाओ, आश्रम बनाओ, सो दैट आई कैन कम हियर एंड स्टे. तो 1988 में श्रीमती जी आए. उन्होंने कहा कि अभी अगर अगले साल आप बनाते हैं यहाँ एक फ्लोर मेरे लिए, तभी मैं आऊँगी, अदरवाइज मैं दिल्ली नहीं आऊँगी. ये मेरे सामने बात हुई थी. दो आई वॉज नॉट लीडर दैट टाइम, क्योंकि कलेक्टिविटी थी 50 में से कुछ मीटिंग फिटिंग है तो 4-5 आते थे, तो उसमें हम जाते थे. तो मुझे लगा कि क्या ऐसी क्या बात है. फिर मैंने वो काम श्री माता जी ने मुझे जाते थे कहा कि तुम्ही बघा की तुम्ही काय करता, तुम्ही बघा हे का. फिर वहाँ 89 एक साल में पूरी बिल्डिंग तैयार हो गई. सेकंड फ्लोर पूरा श्री माता जी के लिए बनाया हमने. एंड बट दिल्ली कलेक्टिविटी इज वेरी फंटास्टिक. दे आर सो हेल्पफुल. So at that time, oh sorry, आजकल कुछ नया सुना है. And they used to contribute huge donations. एक दिन में उस समय, I am talking about 88, एक दिन में 10 लाख इकट्ठा होते थे. Can you imagine? तो कोई money was no problem. फिर हमने कहा कि और हमारे घर से दैट प्लॉट वाज 3 किलोमीटर of our house in Delhi. Okay, 3.5. मैं इसलिए बोल रही हूँ, इनका ऑफिस हमारे घर से 3.5 किलोमीटर, न्यू टेम्पल 3.5 किलोमीटर, ओल्ड टेम्पल 3.5 किलोमीटर, और मेरे बेटे का स्कूल आरकेपुरम 3.5 किलोमीटर. And you know what is 3.5? हाँ सही जरूर. नहीं इसको ब्रेकफास्ट खाना है तो खा सकते हैं अभी. द सेम डिनर एज ब्रेकफास्ट. अब तुम्ही या की लिहिला ते मला बोलायला लावून तुम्हीच तिकडे गेले. बरं आपण कुठपर्यंत आलो होतो. 3.5. फिर हमने वो सेकंड फ्लोर पूरा. अच्छा, देयर इज ए रीजन व्हाई आई एम गिविंग दिस बैकग्राउंड. आपने बोला ना म्यूजिक के लिए, तो आई एम टेकिंग यू टू दैट म्यूजिक पॉइंट. सो वो पूरा बना दिए, फुल्ली फर्निश्ड आल्सो. आई मीन वो जो कलेक्टिविटी थी उस समय में नॉट बी इवन 100, less than 100 दिल्ली में, but they were all fantastic. And आज यहाँ कारपेट लगाना है सेकंड फ्लोर पे, somebody will say I will pay for carpet. अच्छा, आज यहाँ कर्टन लगाना है, somebody will say I will pay for curtains. और and he will not bring any lower quality material, the best available in Delhi. तो वो पूरा सज गया सेकंड फ्लोर. फिर हमको वहाँ लिफ्ट में लगानी थी, तो लिफ्ट किसने बोला कि ओटीस वगैरह लगाना है तो बहुत खर्चा है, बिकॉज ओटीस इज वेरी कॉस्टली लिफ्ट. तो एक ने बोला कि उसका आधा खर्चा मैं दे दूँ, तो एकदम हाफ कीमत हो गई. फिर हाफ हमने कलेक्टिविटी से डाल के लिफ्ट भी लगा दी. तो श्री माता जी अगर आते हैं तो हमारी लिफ्ट तैयार हो गई, सेकंड फ्लोर तैयार हो गया. तो श्री माता जी आ गए. श्री माता जी को खबर दी कि श्री माता जी हमने तैयार रखा है. आपने बोला था कि जब तक ये तैयार होंगी नहीं मैं आऊँगी नहीं दिल्ली. तो श्री माता जी का मैसेज आया कि आई एम कमिंग 89. तो 89 नवंबर श्री माता जी आए. तो हमने बिल्डिंग इट इज ए
2.5 स्टोरीज, बेसमेंट, सारे बाउंड्री वॉल, पूरा लाइट फ्लडिंग करके बिल्डिंग भी लगा दिए। और आसपास दूसरी बाजू वाली जो बिल्डिंग थी उसके सामने एकदम ये लगने लगी। तो श्री माता जी आए, बहुत कुछ कहा उन्होंने, मैं अभी नहीं बताऊंगा वो। फिर लगेगा ना अपनी प्रेस करते जा रहे हैं। तो तब से श्री माता जी वहाँ आने लगे। तो आप रिकॉर्ड देख सकते हैं कि 89 से 2004 तक श्री माता जी हर साल दिल्ली आए, हर साल वहाँ बर्थडे पूजा हुई। और बात करना श्री माता जी ने 2004 दिसंबर में बात करना बंद, आई विल नॉट से कंसर्ट कम किए। उसके बाद में बर्थडे पूजा दिल्ली में हुए नहीं 2004 के बाद। तब तक श्री माता जी आते थे और आके फिर वो सेकंड फ्लोर पे रहते थे। बीच में श्री माता जी ने 2 मकान आपने बनाए, वन वॉज नोएडा, अनदर वॉज पालम विहार, जो श्री माता जी के अपने घर मकान थे। और वो भी काफी बड़ी बिल्डिंग थे, हाफ एकड़ के प्लॉट्स बड़े बड़े, और ये भी हाफ एकड़ था। लेकिन फिर भी श्री माता जी आके वहाँ आके 2 दिन रहते थे अपने घर में, फिर बोलती थी चलो हम अपने आश्रम चलते हैं। तो हम हमारा सेकंड फ्लोर पूरा तैयार रखते थे। दिल्ली वाला है कोई इधर? कोई नहीं आज। हाँ। मैं कह रहा हूँ सब ठीक है ना? अरे आप तो छोटे होंगे उस समय। तो अभी बैकग्राउंड ये था कि सेकंड फ्लोर पे श्री माता रहने रहते थे। शी यूज्ड टू ऑलवेज लाइक टू कम एंड स्टे देयर। इवन अच्छा, उनके अपने दोनों घर वेर फुल्ली फर्निश्ड, वेरी नाइसली डेकोरेटेड। कि उस एरिया में जो सहयोगी थे वो बेचारे वो भी काम करते थे, बट इट वॉज श्री माता जी पर्सनल हाउस, सो दे हैव देयर ओन लिमिटेशन हाउ फार टू डू दिस पर्सनल हाउस, वेयर दिस वॉज ए आश्रम। करने कराने वाले सहयोगी, तो हमारे लिए फ्रीडम था यहाँ, जितना करना श्री माता जी के लिए करो। और बहुत सारे लोग आते थे, जैसे अभी श्री माता जी 1 साल के बाद आ रहे हैं, सेकंड फ्लोर बंद रखते थे, अभी खोलना है, तो वहाँ क्यों लगती थी? मैं कि ये काम करूंगा, मैं वो सफाई करूंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा। सो एब्सोल्युटली देयर वाज नो प्रॉब्लम। तो फिर ऐसा था कि जो आपको बताना है, वहाँ श्री माता जी आते थे नवंबर, बिगिनिंग ऑफ नवंबर टिल 15th ऑफ दिसंबर हर साल। और 15 दिसंबर के बाद शी विल कम टू मुंबई, आणि आपले गणपतीपुळे सुरू होता था 22 में। Those days were fixed. Then Shri Mata used to come to Delhi again in the middle of February or early February. Birthday puja करके April middle Shri Mata used to go to Europe, maybe Italy. So 2 महीना इधर, 2 महीना इधर. So that was a continuous program coming to Delhi. फिर हमें वो सारा चांस मिलता था 2 और 2 4 महीने। तो श्री माता जी यूज्ड टू प्रीफर टू स्टे इन द सेकंड फ्लोर, और सेकंड फ्लोर का सारा मेंटेनेंस, किचन, कुक्स, सारा इन द इनिशियल पार्ट, दो आई वाज नॉट लीडर बट इट वाज विथ मी, क्योंकि वो बिल्डिंग बना के तैयार रखी तो श्री माता बोली कि अब ये तुम ही देख लो। तो 1990 तो होता ये था कि जैसे अभी सबको मालूम है मेन पूजा सहयोग में 11 होते साल में, मेन पूजा नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे। लेकिन देर आर सम पूजा जिसको आप छोटी पूजा कहेंगे, जैसे श्री हनुमान पूजा, श्री राम पूजा, बुद्ध पूजा, महावीर पूजा, अक्षय तृतीया, छोटे छोटे श्री राम पूजा बोल देना। तो ये वो 11 पूजा में नहीं है ये,
तो फिर हम लोग चटक लग गई थी कि ये जो पूजा है मेजॉरिटी इट कम्स बिटवीन मार्च एंड अप्रैल। अब देखिए ये सारे पूजा मार्च अप्रैल में आते, तो उस पीरियड में श्रीमान दिल्ली में रहते थे। तो फिर हम बोलते थे कि श्री माता जी कल तो हनुमान पूजा है और आप यहाँ है, हम छोटी पूजा यहाँ करेंगे। तो शीज टू फील नहीं, सारे सजीवों को मिलना चाहिए सारी पूजा। हमने कहा श्री माता जी फिर उनके बिहाफ से तो कर रहे हैं हम ऐसे अपना इंटरेस्ट। अच्छा चलो भाई करो। फिर पहले साल 1990 में 25-30 लोग आ गए छोटी पूजा बोलते उधर सेकंड फ्लोर पे। फिर श्री माता जी पूजा होने का बोली कि ये छोटी पूजा हो गई। तो ऐसा नहीं है, आप 5 ज़्यादा से 7-8 लोग आते जाओ। यहाँ जो रहते हैं इस आश्रम में प्लस 1-2-3 लीडर बाहर से कोई आए थे, क्योंकि मुझे अच्छा लगता नहीं कि बाकी सजीवों को चांस न मिले और इनको ही मिलते रहे। लेकिन आपकी इच्छा है कि ये फेस्टिवल ये है, सो वी शुड डू इट। ओके, तो फिर ये हुआ कि ये 3 पूजा, गुरु नानक पूजा, बुद्ध पूजा, हनुमान पूजा, तो इस पीरियड में आते थे। फिर हम सब तैयार तो करने वाले लेडीज ही थे। ये आंटी बाजू वाले रूम में सारे प्लेट फिट लगा के सब तैयार। फिर हम श्री माता जी को पहले दिन पूछते थे, श्री माता जी कल हनुमान पूजा है, हम कितने बजे करें? श्री माता जी यूज्ड टू टेल ठीक है आप सवेरे 10 बजे को। अब ये भी था कि 7-8 से ज़्यादा लोग नहीं आना है। तो फिर 1995 की हनुमान पूजा परमिशन तो मिल गई थी। तो ये सब तैयार रहते थे हम पहले सवेरे अर्ली मॉर्निंग 10 बजे है तो ये 7 बजे आके सब तैयार, और 10 का इंतज़ार है, काटा कब 10 पे आ रहे हैं। तो होता ये था कि श्री माता जी की बेडरूम के बाहर देयर इज अ बिग ड्राइंग हॉल एंड वहाँ काफ़ी सोफे वगैरह रखे हुए हैं। श्री माता जी का सोफा, श्री माता जी यहीं बैठेंगे। तो श्री माता जी यूज्ड टू कम फ्रॉम बेडरूम एंड शी यूज्ड टू सिट इन दैट सोफा। और फिर ये 8 लोग आने के बाद पहले हम डिसाइड करते कौन 8 आना है। उसमें 2 शक्ति, 2 लेडीज, 2 काम करने वाले, वहाँ ऐसे करके 8 करते थे। और उस 8 में मैं हमेशा रहता था। तो वहाँ हम तैयार रहते थे। श्री माता जी अभी बराबर डाइनिंग हॉल से आते ही श्री माता जी विल नॉट जस्ट सिट इन द सेम ड्रेस। उनको मालूम है कि आज बेचारे पूजा करने वाले हैं। श्री माता जी यूज्ड टू कम विथ प्रॉपरली न्यू ड्रेस, जैसे साक्षात पूजा में आते हैं 11 वैसे ही आते थे। अंदर से आके वहाँ सोफे बैठते थे। फिर हम श्री माता जी को कॉल लिया आता तुम या करा पूजा। तो 1995 में हनुमान पूजा के टाइम पे ऐसा ही हुआ कि सब तैयारी हो गई और वहाँ श्री माता जी आप बेडरूम से निकल के बाहर आके यहाँ बैठेंगे और हम पूजा करेंगे। पूजा में क्या क्या करना है वो भी पहले बातचीत करके रखे थे। 4-5 प्लेट तैयार रखते थे, वही रखना है, और आरती भी करते थे। तो उस पीरियड उस दिन नॉर्मली श्री माता जी बेडरूम से बाहर आने के लिए 10-12 मिनट लेट ही होते थे। टाइम के पहले तो कभी आए नहीं श्री माता जी, 5-10 मिनट लेट ही। तो जो 8 लोगों को बुलाया था वो 8 लोग उस दिन श्री माता जी बराबर 10 बजे बाहर आके बैठे, और ये जो 8 लोग थे कोई आए नहीं। उनको लगा कि श्री माता जी तो आएंगे,
कोई आया नहीं। फिर सीमाते और वहाँ मैं तो था, जल्दी आएगा। आधा घंटा पहले आया लोग, 10 बजे आने वाले थे लोग। अच्छा ठीक है, तो ये सीमांत थोड़ा जल्दी आ गए, 10 बजे से पहले 10 मिनट पहले आ गए या 15 मिनट। और ये जो लोग आना था वो इधर आधा घंटा लेट आए, तो बीच में गैप कितना मिलेगा, 40 मिनट से गैप मिलेगा। तो I used to be, being a caretaker, I used to be there most of the time. उसको हम टेम्पल बोलते थे ना, आश्रम। तो मैं उधर रहता था, तो वहाँ खलबेल मच गई, श्री माता जी बाहर आकर श्री माता जी बैठ गए। फिर मुझे बुलाते थे, किधर किधर तुम आ जाओ, चलो कर लो पूजा। तो श्री माता जी बैठ गए, 1995 की बात है, बैठ गए। और ये श्री माता तो थोड़ा टाइम से पहले आए, और ये लोग तो कोई आए नहीं, मैं अकेला ही हूँ। फिर श्री माता जी बोली कि मैंने कहा कि श्री माता जी उनको उनका इंतजार हुआ है नहीं नहीं अभी किसी का इंतजार नहीं करना है, तुम कर लो कुछ। सो आई वाज अलोन, मैंने श्री माता जी मैं अकेला हूँ, हाँ करो तुम करो। तो अभी सामने तो तैयार है प्लेट्स वगैरह, पूजा का सामान। अब मुझे लगा कि श्री माता जी तो बैठ के मेरी तरफ देख रहे। फिर मैंने कहा कि अभी साइलेंटली मैं अकेले कैसे करूं, कुछ मंत्र बोल जाए या कुछ भजन हो जाए। अब भजन भी मैं खुद कैसे, मुझे भजन गाने आता नहीं। फिर वहाँ एक सामने हमने एक बड़ा टेप रिकॉर्डर ला के रखे थे, उस समय कैसेट्स ही बहुत थे। और आपकी जो भजन आपने गाया इधर, पूना की कौन गाई करती, मीना पात्र बोले था, मीना पात्र के कैसेट आती थी पूरी रिकॉर्डेड, तुझा पूजने, ये उसने गाया पहले। फिर प्रभु माझा, ये भी उसके अंदर है। तो मैंने क्या किया, वो कैसेट लगा दिए, बराबर पहला गाना तुझा पूजने और प्रभु माझा। और श्री माता जी मेरी तरफ देख रहे हैं, ये क्या क्या करता है। अकेले में पूजा करना है, अभी लेडीज भी नहीं है, लेकिन कि ये देवी पूजा है तो ये संभाल लेते हैं। तो फिर मैंने वो लगा दिया, बराबर फर्स्ट क्लास वही लगा, तुझा पूजने, वो खत्म होती। फिर प्रभु माझा मला घेऊन एकांती, और हम करते हुए पूरी पूजा। अब बराबर 2 भजन होने तक पूजा इधर खत्म हो। फिर मैंने नमस्कार करके तो श्री माता जी बोला कि यू आर वेरी एक्सपर्ट। फिर हमें थैंक यू वेरी मच। नहीं, फिर आरती भी तैयार करके रखी थी। आरती भी थी ना, तो आरती भी अकेले अंकल नहीं करते। तो सारा माला, कुमकुम, जो भी प्रसाद, आरती सब अकेला हुआ। और तब तक इधर से कोई आया नहीं। तो मुझे वो गाना सुनते ही वो याद है, पूरा सीन पूरा मेरे सामने। 16। और दूसरा और एक है कि कोई श्री माता जी के सरसिपी दूसरे कमरे में थे, वो भी बाहर आए नहीं। फर्स्ट फ्लोर पे साधना दीदी रहते थे, किसी को मालूम नहीं होगा कि आप सब न है। फर्स्ट फ्लोर वॉज गिवन टू साधना दीदी, उनका घर तैयार था नहीं, शिवानी बोल रहे ठीक है तुम यहाँ रहो। और तो वो किराएदार नहीं छोड़ रहा था उनका, वो पटना से आए थे। साधना दीदी का मायका उधर है, सॉरी ससुराल उधर है बिहार। वो आके देखा तो बच्चों के स्कूल दिल्ली में शुरू करना था, और उनका मकान वो किराएदार ने खाली नहीं किया था। तो शिवानी बोले ठीक है तब तो आप यहाँ रहो। तो रोह बोल के रहते रहते उनको 1 साल 2 साल इधर रहे। और उसी पीरियड में ये सब 195 में। तो मुझे लगा कि आप कोई नीचे से आएंगे,
दीदी या उनके बच्चे या सर से भी कोई आया नहीं, सब बंद। और मुझे लगा कि और ये भी आए नहीं, 8 लोग जो बुलाए थे वो भी नहीं। और किसी महाराज बैठ के बोले कि करो, शुरू करो पूजा। मैंने बोला कि वो आए थे, नहीं फिर क्या हो, तुम करो, अकेले करो। तो वो कैसे लगा के फर्स्ट क्लास बजते रहा, पूरी पूजा हुई। आरती वगैरह होने के बाद श्री माता जी फिर बेडरूम में चले गए। फिर ये बाहर आके स्टेयर्स उतरने लगे। एक स्टेयर उतरने के बाद सब लोग चढ़ रहे हैं। ये बोले चलो अब सब नीचे ही चलो। नॉर्मली ऐसी छोटी पूजा जब करते थे हम, श्री माता जी फिर वहीं बैठते थे कि चलो अभी चाय लाओ, बुलाओ सरस्वती को, बुलाओ, घर में कौन कौन है। तो कुछ कहा नहीं, श्री माता जी पूजा होती सब बैठ गए, प्रसाद वगैरह ले लिया हमने और श्री माता जी उठ के बेडरूम में चले। बाद में ये जो जिनको बुलाया था वो आ रहे अपने स्टेज चलते चलते। तो वो सारा सीन मुझे भजन सुनती सामने आया कि माता जी बैठे हैं, एकदम काफ़ी बड़ा ड्राइंग हॉल था, वो दोनों भजन जो से बज रहे और हम पूजा अकेले में। स्पेशालिटी त्या भजनाची आहे की प्रभू माझा घेऊनी बसे मला एकांती, आणि त्या क्षणाला जगी कुठेही मिळेना अशी शांती, असं सेंटेन्स आहे त्याच्यामध्ये. जो It मराठी is symbolic that he has alone done the puja, but if you do the Sri Mataji's puja in your heart, it is the same. प्रभू माझा घेऊनी बसे मला एकांती. You should read this sentence. Yes. You are alone with Sri Mataji. तो सारे एक्शन इतने फास्ट हुए क्योंकि वो कैसे थी, लेकिन ये भी मालूम नहीं इस साइड कौन से भजन है, उस साइड कौन से भजन है। तो बराबर उसको रिवाइंड किया, लगा दिया, एकदम फर्स्ट क्लास जो चाहिए वही लगे। तो दिस व्हाट दैट टाइम आई फेल्ट। तो फिर आपने उस दिन वो जो गाया उसने, वो मेरे सामने वो सारा पिक्चर आ रहा था। काका सोर्स रिवील करू क्या? हाँ? अरे नहीं, नेक्स्ट त्या दिवशी मीन्स इसका सोर्स जो था, अंकल को क्वेश्चन पूछने के पहले तो दिलीप काका से ही बात हो रही थी, वो बोले कि पूछो तो सोर्स जो था वो याद था। और ये मुझे कैसे, मैंने कहा मेरा फेस में इतना रेडी करके ये पीछे पड़े, क्या आपको क्या लगा? अरे कमाल है। तो वो और दूसरे भैया थे, बोले नहीं ये बहुत अच्छा ध्यान करते हैं। नहीं मुझे ये लगा कि उसी दिन बता सकता, लेकिन इससे ये लगा कि ये अपनी ही बजाते जा रहे हैं, अपने ही बताते जा रहे हैं, इसलिए मैंने बताया नहीं। मैंने कहा आपको मैं बाद में बताऊंगा। This is what it is. अभी आप बैठे तो नींद छोड़ के बैठे, तो एक छोटा और एक मिरेकल बताऊंगा मैं। वो मिरेकल सुनते सुनते फिर आप जाइए। वैसे मेरे पास बहुत है, 25-30 मिरेकल है। अभी एक ही, सॉरी एकच बरं तर। आणि तुम्ही सांगत बसल्यावर कोणी उठणार नाही, त्यामुळे आता झोपू द्यायचं नाही. मग ठीक है ना, ये समा अभी थोड़ा है ना। कंक्लूडिंग वाला, ये कंक्लूडिंग वाला। आज ठंड भी नहीं लग रही आंटी, देखो। अरे तुम पकड़ के बैठे, कैसे ठंड लगी उसमें। गणपतिपुले शुरू हुआ 1985 टिल 2003, और हम हर साल दिल्ली से जाते गणपति। और फिर वहाँ जो कुछ श्री माता जी के साथ, श्री माता जी यूज्ड टू गो फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई एग्जैक्टली ऑन 20 दिसंबर, शायद 21 दिसंबर कल्पना दीदी का बर्थडे, 21 मार्च। फिर वो बर्थडे होते ही उसी दिन श्री माता निकलते थे गणपति के लिए, फिर 1 वीक गणपति के लिए।
तो ये प्रोग्राम कम से कम 10-12 साल चलते रहा ऐसा ही। तो फिर मैं आता था मुंबई, क्योंकि श्री माता जी बहुत सारी पूजा 11 पूजा इंटरनेशनल नेशनल गिफ्ट जनरली दे यूज्ड टू गिव नेकलेस टू श्री माता जी। नेशनल जिस कंट्री में जो पूजा हो रही है दे यूज्ड टू गिव एज ए नेशनल गिफ्ट एंड इंटरनेशनल गिफ्ट, ऐसे 2 गिफ्ट होते थे। और श्री माता जी यूज्ड टू बाय सारी 11 पूजा की 11 साड़ीज में 2 साड़ी देते, नेशनल साड़ी इंटरनेशनल साड़ी, 22 साड़ी श्री माता जी दिल्ली में ही लेते थे जब आते थे। और सारी एक गिफ्ट जो है वो भी दिल्ली में लेते थे। और तो ये सब खरीदते समय then I was involved fully to call those people in the temple। सारा वो सूटकेस भर के आते थे। जब साड़ी खरीदने तो टेम्पो आता था, वो टेम्पो खोल के श्री माता साड़ी देख रहे, सेलेक्ट कर रहे, और मेरा काम था वहाँ बैठ के हिसाब किताब करना, पैसे देना, पैक करके फिर वो गणपति लेके जाए, क्योंकि वहाँ से फॉरेनर सारे लेके जाएंगे। सिमिलरली जो गिफ्ट है नेकलेसेस, फिर वो भी एक सूटकेस में रखे, देन आई टू बॉम्बे, फिर वहाँ से गणपतिपुर। तो ये कम से कम 15 साल तो चलते रहा ऐसा। तो गणपतिपुले में तो प्रोग्राम होते थे, दिस वाज अगेन 95। उसमें क्या हुआ कि 7 दिन प्रोग्राम श्री माता जी पूरे 7 दिन आते थे हर रोज, और इवनिंग में म्यूजिक चलता था एटलीस्ट, कभी कभी रात के 12 बजे तक, कभी कभी रात के 1 बजे तक श्री माता जी वहाँ बैठे हैं। अलग अलग संगीतकार ऑल ओवर द कंट्री आके बजाते थे, एंड म्यूजिक के थ्रू श्री माता जी सामने जो बैठे सहयोगी सबको क्लियर करते थे। यू कैन इमेजिन आज का प्रोग्राम शुरू होने के पहले क्या आपकी स्थिति है। 12 बज गए, फिर आप खुद देखिए एकदम एवरीथिंग इज ओपन टॉप टू बॉटम। सो फिर बाद में डिफरेंट प्रोग्राम जैसे मैरिजेस होते थे, पूजा होती थी। तो जो म्यूजिक डे के दिन एक बार 1995 में ये हुआ कि म्यूजिक चल रहा है, जो स्टेज पे बैठ के गा रहे, तो श्री माता जी सामने आए बैठ के गाते थे। तो एक लेडी स्टेज के जहाँ से स्टेप्स है, एक लेडी आके वहाँ ऊपर आने की कोशिश कर रही थी स्टेज के ऊपर। तो वहाँ हम वॉलंटियर रखते थे, किसी को ऊपर नहीं आने देना है, और वो लेडी वहाँ स्ट्रगल कर रही है ऊपर आने के लिए, और श्री माता जी के बाजू में पीछे वहाँ मैं उस समय बैठा था। तो वो श्री माता ने देखा कि वो लेडीज इज ट्राइंग टू कम एंड वॉलंटियर इज नॉट अलाउइंग, वॉलंटियर इज डूइंग हिज ड्यूटी। तो श्री माता ने मुझे कहा कि जाके देखो कि कौन लेडी है और क्या चाहती है। मैं गया उधर, तो वो बोली कि मैं श्री माता जी के मायके साइड से रिश्तेदार हूँ। मायके लगा तो माहिर। तो वो शायद श्री माता जी की भांजी या ऐसा कुछ थी। तो मैं आके बताया तो वो भांजी है। तो बोली कि ठीक है भांजी है, तो फिर क्या हुआ। तो बोली कि उसने कुछ कविता लिख के लाई है आपके लिए, और वो आपको कविता दिखाना चाहती है। अच्छा ठीक है, फिर बोला उसने। तो वो उधर म्यूजिक चल रहा है, गाने वाला सितार हो या जो भी इंस्ट्रूमेंटल या वोकल म्यूजिक चल रहा है, और फिर ये और उस लड़ी को लाए। फिर वो श्री माता जी को प्रणाम करके धीरे धीरे बात कर रही है, और वो कागज खोल के
दिखा रहे हैं कि मैंने आपके लिए कविता लिखी हुई है आपके ऊपर। तो वो देखे फिर श्रीमाते ने बोला बहुत अच्छा लिखा है। बहुतेक नगर जिल्ह्यामध्ये श्रीमातेचे कुठले तरी आहेत रिश्तेदार नगर जिल्ह्यामध्ये। तो फिर वो कागज लेके श्रीमाते बोले वेरी गुड। श्रीमाते जी तो सबको तारीफ करते हैं अगर आपने कुछ किया है तो। फिर थैंक यू बेटा, वो नीचे निकल गई। अब वो कागज जो है कविता लिखी थी श्रीमाते के ऊपर उसने, श्रीमाते जी मुझे वो कागज दे दिया और मुझे बोला कि आप ये अभी बीच में जब इंटरव्यू होगा इस म्यूजिक केस में ये सबको पढ़ के दिखाओ। अच्छा पढ़ के दिखाओ। अब मैं तो इंजीनियरिंग पास किया है, दिल्ली में रह रहा है, मुझे मराठी की कविता का कुछ संबंध नहीं। अब ये पढ़ के दिखाना है। कविता जब आप पढ़ते हैं तो यू हैव टू रीड इन दैट स्टाइल ना, यू कैन नॉट रीड लाइक ए गद्य पद्य जो कहते हैं। मैंने कहा मेरे चेहरे पे आ गया। मैंने कहा अब हाँ तो बोलना ही है, हाँ बोल दिया। फिर उठ रहा था, फिर श्रीमान बोली ऐसा करो पढ़ो और हर एक पैराग्राफ का मीनिंग भी बताओ सबको। तो दिसंबर में ठंड होती है, पसीना इंस्टेंट पसीना आ गया, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं। फिर मैंने सोचा कि नहीं हम कुछ करेंगे। फिर अभी म्यूजिक तो चल रहा है, मेरी इच्छा थी कि ये जो इंटरव्यू जल्दी ना हो। फिर नीचे आके मैंने पूछा कि यहाँ पुणे से और मुंबई से कौन कौन महाराष्ट्रियन है और कौन मराठी का प्रोफेसर है। तो किसी ने जाके 2 प्रोफेसर पकड़ के लाए उधर स्टेज के बाजू में। तो उनको मैंने दिखाया, आपने कविता देखी, यहाँ देखिए, तो मीनिंग बता सकते हैं, हम बता सकते हैं, पढ़ सकते, गुड। मैंने आप बैठो इधर। उनको स्टेप्स के नीचे बिठा दिया। फिर मेरा चेहरा थोड़ा खुल गया। फिर ऊपर आया, अब देख रहा था कि अब ये कब होगा। तो वो म्यूजिक इंटरवल आ गया। फिर मुझे लगा कि पहले तो देखते हैं श्रीमाते जी अगर भूल गए तो काम पहले ही खत्म हो जाएगा। तो मैं देख रहा था श्रीमाते जी ने हो गया। फिर मुझे बोला अहो इकडे या तुम्ही, ते वाचून दाखवा। अच्छा ठीक है। फिर मैं नजदीक गया, मैंने कहा श्रीमाता जी मैं तो कोई मराठी का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन नीचे एक प्रोफेसर है, ही इज एक्सपर्ट और वो अच्छी तरह पढ़ेंगे, आपसे बताइए। मैंने आपको बोला है। आप क्यों जाके प्रोफेसर ढूंढ रहे? आप पढ़ो। अब मैंने ठीक है, अब आज तो अपनी पूरी बेइज्जती होने वाली है। तो पैर लड़खड़ाने लगे। अच्छा मैंने देखा वो 5 पैराग्राफ है, एक 2 तो लिखना है, 3 ज्यादा। मैंने सोचा कि 5 तक तो मेरा। अच्छा मैंने उसको देखा भी नहीं था क्योंकि मुझे प्रोफेसर मिल गए। अब मैं क्यों पढ़ूं पहले, कुछ तैयारी भी की नहीं। तो जाके अब बोला श्रीमाते अब जो होना है सब होना है, आज तो अपनी कंप्लीट बेइज्जती होनी है। खड़ा हो गया, वो ले लिया और शुरू किया पढ़ना। यू विल नॉट बिलीव, वो जो पढ़ने का लय होता है वो ऑटोमेटिक आ गया। और माईक जवळ गेल्यावर तुम्ही काय प्रार्थना केली ते महत्वाचं समजा. नहीं वो मैं कह रही कि मैंने मन में ही बोला कि श्रीमाता जी जैसे घबरा गया मैं पूरा कि अभी आप ही संभालो मुझे। संभालो मतलब मैं तो सोच रहा था कि ये लड़खड़ा जो गिर न जाऊंगा, तो ये काम तो होगा ही नहीं। आई वॉज वेरी श्योर, क्योंकि
सालों साल मैंने मराठी कविता पढ़ी नहीं, और वो भी किसी ने लिखे और मैं उसको पढ़ के मीनिंग बताऊं। तो जी वहाँ हो गया, मैंने शुरू किया और श्री माता जी मेरे तरफ देख रहे, तो मैंने कहा अभी आप देख लो श्री माता जी। तो मैं यू विल नॉट बिलीव, तुमसे आपके कंप्यूटर में होता ना, उसको एनलार्ज करते हैं हर एक लाइन, क्या बोलते हैं उसको, जूम जूम। तो मैं एक एक सेंटेंस देख रहा हूँ, वो सेंटेंस पूरा जूम हो रहा है, एंड आई एम रीडिंग इन द सेम स्टाइल लाइक यू आर रीडिंग कविता। अब मैं देख रहा हूँ मेरे इसमें दो हो गए तैयार, मैं देख रहा हूँ अरे मैं पढ़ भी रहा हूँ अच्छी तरह, कीपिंग वॉच ऑन मी, ठीक पढ़ रहा है, वो लय भी आ रहा है, वो ये कविता आ रहा है, और पढ़ते पढ़ते फिर मीनिंग बताना है, और बाय द टाइम द फर्स्ट एवरी पैराग्राफ आई वाज कमिंग टू द एंड, वो मीनिंग पूरा आता था। फिर मैंने मीनिंग बता दिया, करते करते मैंने कहा पहला पैराग्राफ हो गया है तो नीचे भी हो जाएगा। तो बोथ द माइंड्स वे कंप्लीटली अवेयर क्या हो रहा है। करते करते 5 पैराग्राफ मैंने पढ़े, वो जूम होते गए, और लय भी आ गई, मीनिंग भी आते गया, और एट द एंड सबने तालियां बजाई जोर सबने। मैं देख रहा हूँ ये ताली तो कहाँ से आ रही थी। और फिर मैं जाके जैसे ही खत्म हुआ, किसी माजी बोले कि बहुत अच्छा पढ़ा आपने, और बहुत अच्छा आपने मीनिंग बता दिया। फिर मैंने नमस्कार करके बोला, श्रीमाती ये तो आपने ही करवाया, तो मुझे तो नहीं आता था। श्रीमाता ने बोला क्या हो कि संत ज्ञानेश्वर एक हिंदी में रेड़ा काम कर, भैंसा रेड़ा, संत सांड पण म्हणून. संत ज्ञानेश्वर सांड. ने एक भैंस से गीता पढ़वाई थी। आप तो सहयोगी है। और ज्ञानेश्वर की जगह मैं आदिशक्ति बैठी हुई थी। और ये जो गुफित है, बाकी सब जो पुणे बॉम्बे के सहयोगी उस समय आए थे, और क्या आपने अच्छा पढ़ा, क्या आपने नहीं बताया। और वो 2 बेचारे जिसको सेलेक्ट करके मैं रखा था, वो रिपीट करते रहे, वो गुस्सा किए, तुमको खुद को ही करना था तो हमको क्यों मिले। ये दिस इज वन ऑफ द मिरेकल। सो दिस लाइफ टाइम मिरेकल। इससे और बहुत बड़े बड़े मिरेकल है। आज जो बताया मैंने, ये कम दर्जा का मेरा मिरेकल है, और तो बहुत है दूसरे। तो ये याद आता है, शॉर्ट टाइम में बताना है तो ये शॉर्ट टाइम में हो गया, बाकी लंबे मिरेकल और बहुत है। तो वो कैसे लगा कि भाई ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर एक भैंस से गीता पढ़वाते हैं। दिस इज व्हाट इट इज। सो ठीक है राहुल जी, तो थैंक यू वेरी मच। हाँ, राहुल का हेलो राहुल। वैसे बताने लायक कुछ है नहीं, जैसे आप लोगों के जैसे आने के अनुभव है, मोर और लेस उसी तरीके से हुआ है कि काका का जैसे अप्रोच था, मोर और लेस मेरा भी वैसे ही अप्रोच रहा। जब मेरे कजन्स मुझे बता रहे थे कि सहयोग के बारे में,
एंड आई वॉज वेरी इंटेलेक्चुअल कि जैसे अभी काका को भी मैं क्वेश्चन पूछने रहा था कि काका आप तो किसी मंदिर में नहीं गए तो फिर आपको बैंगल्स के बारे में कैसे पता। तो वो सवाल मैं पूछने रहा था तो मैंने लेकिन पूछा नहीं बिकॉज दैट विल ब्रेक द रिदम। तो मैं इस तरीके से मेंटल चलते रहता है, अगर कोई कुछ बता रहा है तो मेरे दिमाग में पीछे में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं उसके, पर कई बार मैं वो पूछता नहीं हूँ। तो जब मेरे कजन्स मुझे बता रहे थे तो एक क्लियर था कि भगवान किस तरीके से होने चाहिए। जैसे कहते हैं ना अपने अपने राम जैसे होते हैं, हमने श्री माता जी को अपने अपने तरीके से देखा हुआ है। तो उस तरीके से मेरी संकल्पना भगवान के बारे में अलग थी। सो आई कैन, जब मैंने श्री माता जी का प्रतिमा उनके पास देखा तो आई यूज्ड टू टीच देम, मीन्स टीच देम इन टर्म्स ऑफ लाइक कि हाँ मेरे लिए ये एक संत के तौर पे सही है, पर शी कैनॉट बी अ गॉड। भगवान, मुझे पता है कि भगवान कैसे रहेंगे। तो वो कैसा ना कि भगवान ने लपेटे में लेना है तो किसी को भी, वो कह रहे थे ना उंगली सीधी आड़ी टेढ़ी सीधी, उसी तरीके से हुआ कि एक दिन, पर वो एक मानना पड़ेगा जो कजन्स थे कंसिस्टेंटली हैमर कर रहे थे कि जब भी मौका मिलता था, अरे तू इतनी किताबें पढ़ता है, यू नो सो मेनी थिंग्स, तो व्हाई डोंट यू ट्राई दिस। पर वो संकल्पनाओं को, वो जो संकल्पना थी वो फिट ही नहीं बैठ रही थी, क्योंकि श्री माता जी मेरे लिए एक संत थे और भगवान एक तरफ, तो वो संकल्पना बैठ नहीं रही थी। तो ये जो है ये असमंजस जो चल रहा था, तो वो हर बार जब भी ट्यूसडे आता था, आज सेंटर है तो देख तुझे जमता है क्या, तो मैंने उनको 4 साल टला दिए ऐसे ही। पर मुझे श्री माता जी के बारे में सब कुछ पता था तो उस वक्त, क्योंकि उनके साथ रहता था तो बातें चलती थी वो थी। और जब पता चला तो आई थिंक वो जर्नी शुरू हुई थी अराउंड 1996, जब मैंने उनको टालना शुरू किया अराउंड 2000। मुझे एक दिन इंजीनियरिंग का आखिरी साल था और अचानक क्या हुआ पता नहीं, उन्होंने उसने बोला कि आज सेंटर आना है। तो वो दिन इस तरीके से था कि मैं अपने अंदर में था, सब कुछ चल रहा है लेकिन मैं अपने आप अंदर में था, और सारी चीज जैसे पिक्चर चलती है उस तरीके से चल रही थी। मैं कॉलेज गया लेकिन मैं अपने अंदर था, क्या चल रहा है कॉलेज में, क्या चल रहा है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरे अंदर कुछ तो भी चल रहा है। और मेरी ओर मुझे सेंटर जाना है, वो मैं जा रहा हूँ कॉलेज सवेरे 8 बजे, लेकिन मुझे शाम का इंतजार है। तो वो जो है ना, वो कुछ चल रहा था अंदर, कुछ तो हो रहा था। और फिर समाओ जब ऐसा लगा कि चलो अभी चलना चाहिए, तो मैं उस दिन तो ये इंजीनियरिंग के दौरान मैं अप्रेंटिसशिप भी करता था। तो मेरा कॉलेज सवेरे 8 से पहले 4 कॉलेज, और फिर मैं इसके लिए अप्रेंटिसशिप के लिए जाता था, तो वो रात को 12 बजे निकलता था वहाँ से। तो उस दिन मैंने उनको भी फोन करके बोल दिया कि मैं आज नहीं आऊँगा, मेरा दिल नहीं कर रहा आने का। तो वो भी कह रहे थे कि ये तो अप्रेंटिस वाला बंदा है, तो प्रोडक्शन में इसका कुछ इतना लेन देन भी नहीं है। तो वो भी बोले ठीक है। तो मैं उस दिन वहाँ पे भी मराठीमध्ये दांडी मारणे म्हणतात, तो मैंने वहाँ पे टांग दे दी और फिर सेंटर चले गए। सेंटर में देखा सब बैठे हुए, बंधन से शुरुआत हुई। मैं बोला मैं नहीं करूंगा तो अटपटा सा लगूंगा सारों के बीच में, तो जैसे वो कर रहे थे तो मैंने भी कर दिया। पता नहीं था कि बंधन होता भी क्या है। और फिर आखिरी में उन्होंने बोला कि जब श्री माता जी की स्पीच चल रही थी तो सब अच्छे से बैठे हुए थे, मुझे लगा मुझे भी अच्छे से बैठना चाहिए। तो पैर दर्द करने लगे थोड़ी देर बाद। मैं बोला श्री माता जी बहुत हो गया, अब इससे ज्यादा देर नहीं बैठ पाऊंगा, प्लीज शांत, अभी कृपया आप रुक जाइए, मैं नहीं बैठ पाऊंगा इससे ज्यादा। तो उसके दूसरे क्षण में ही श्री माता जी की अमृतवाणी बन गई। वहाँ उस वक्त कैसेट चलता था, तो एक साइड
वहाँ पे रूल ये उन्होंने अपना रूल बना के रखा था कि एक साइड पे एक सेंटर पे एक साइड सुनेंगे, उसका फिर बी साइड दूसरे सेंटर पे सुनेंगे। तो उसका ए साइड खत्म हो गया था वो, जब मैंने बोला श्री माता जी अब नहीं बैठ सकता करके। तो फिर उन्होंने आगे बुलाया और उस दिन कुछ और भी लोग आए हुए थे। तो उन्होंने जब शुरू किया बताना, तो वो क्या बोल रहे मुझे कुछ पता नहीं, क्योंकि मैं अपने अंदर ही था, चल कुछ रहा है। श्री माता जी ने क्या बोला वो पूरा चीज याद है, लेकिन वो बंदा क्या बोल रहा है मुझे कुछ भी याद नहीं। फिर उसने पूछा आपको ऊपर देखो कुछ महसूस हुआ? मैं बोला इसको नहीं बोलूंगा, ठंडा है, अगर हम कुछ भी नहीं बताऊंगा तो इसको बुरा लग जाएगा। तो मैंने उनको झूठा बोल दिया कि हाँ मुझे महसूस हुआ, पर जबकि कुछ भी महसूस नहीं होता। एक ही चीज इस पूरे दौरान थी जो मैं शुरुआत से लेकर शाम तक के अंदर में एक बहुत बड़ा सुकून था। वो सुकून मैंने कभी महसूस नहीं किया था। वो जो सुकून था वो मुझे ड्राइव कर रहा था कि यहाँ पे कुछ अलग है। तो वो खींचते गया, फिर जैसे धस गए तो पूरे धस ही गए। तो अभी अब क्या ही बोले, सारा एक जैसा ही है, कोई विशेष नहीं है कि जैसे मेरे पास माइक आएगा और आप लोग कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो तो कुछ नहीं, बहुत सर्वसाधारण सी कहानी है, एक सर्वसाधारण सहयोगी की। यश हाँ, मैरिजेस का एक है कि पहली बार जब फॉर्म भरा तो शायद मैं लेट हो गया था तो मेरा फॉर्म गया नहीं था। दूसरी बार हुआ तो without telling the name, but the girl was having girl was doctor and she was in affair with somebody. So she told me, she said, my parents want to me to fill the form, so but I don't. I am already in someone engaged with somebody else. So can you please decline? So I said it has to be ended in a graceful manner. So you do one thing, you come, we will meet with your parents, and then I can tell them in a proper sense, like what of the mutual agreement करके उसको close करते हैं. So you will not become the villain into their eyes as well. So वो उस तरीके से वो भी वर्कआउट नहीं हुआ. तो तीसरी बार जब फॉर्म भरा तो चीन शोले ईश्वरी से मैच है. तो वो बंदे ने, मैं ट्रैवल कर रहा था तो बंदे ने नाम बताया. तो पहले तो मुझे नाम ही रिकलेक्ट नहीं हुआ क्योंकि वो बंदे को प्रोनाउंस करते आ रहा नहीं और मुझे समझ में आता नहीं. तो वो बोला कि कुछ चाइना से आया हुआ है. तो मैं बोला नाम क्या है. तो वो उसको प्रोनाउंस भी करते नहीं आ रहा था बंदे को. तो बोला कि ठीक है वेट करते हैं. फिर जब मैरिज कमेटी की तरफ से मैरिज कमेटी की तरफ से ईमेल्स है तो मैंने उसको ईमेल डाला. तो शी वाज शॉक्ड. उसको लगा कि सम इंटरनेशनल चीटर है सेंट मी एंड सम मेल, क्योंकि उसको पता था कि उसका फॉर्म नहीं जाएगा. क्योंकि जब उसने फॉर्म भरा था तो जैसे वो भी थोड़ी देर पहले उसने बताया कि वो 2009 में तो सेटल्ड हो रही थी और जब उसने फॉर्म भरा तो उसके लीडर ने उसको बोल दिया कि यू आर टू अर्ली टू फिल द फॉर्म. तो 2011 में मैच हो रहा था तो वो बोले कि आपका फॉर्म सिलेक्ट नहीं होगा. तो उसको मालूम था कि अगर उसने बोल दिया है मुझे मुंह पे कि आपका फॉर्म नहीं जाएगा आगे, तो ये जो मैंने मैसेज डाला ये तो सब कुछ तो भी इंटरनेशनल कोई चीटर है जिसने ये मुझे मेल डाला है. तो फिर उसने उसके लीडर से कंफर्म किया कि ये ऐसा मुझे ईमेल आया कि ऐसा ये क्या चीज़ है, इसके बारे में आपको कुछ पता है क्या. तो वो कह रहा था कि जब उसने फॉर्म लिया सो दैट ही वाज फीलिंग वाइब्रेशंस ऑन द हैंड वेदर व्हाई. देन ही सेड I kept my mind shut and I forwarded your form. जबकि उसने मुंह पे बोल दिया कि नहीं भेजूंगा, लेकिन the moment he accepted the form,
took the form, he was feeling vibration. And since then it became the story now. We are together. ओ राजू दादा, काका काहीतरी म्हणतायत, आतमध्ये बोलवत आहेत ते. द्या ना माईक, द्या माईक. बसायला सांगितलं. बसा तर. या. तुम्ही इथं बसा. आम्ही धरतो. आई आहे, ताई बोलली. राजू दादा का अपने बहुत अच्छे एक्सपीरियंस है. उनको यहाँ बिठाओ, आप वहाँ बैठो, माइक बस. दादा इथं. राजू दादा इथं. राजू दादा इथं बसा, ते धरतील माईक. दादा इथं बसा. राजू दादा इथं बसा, ते माईक धरणार इथे. हां मग ठीक आहे. यशोदा जी, हिंदी इंग्लिश काय चालेल? गॅप आहे. मम्मी has lot to speak, but I'll just share maybe एकच अनुभव सांगें. मैं एक अनुभव बताता हूँ जब कबीला में उसकी माता जी के साथ था, और काका भी बहुत, माइक थोड़े जोड़ गया. उस टाइम काका ने बहुत सेवा का मौका दिया था. मैरिजेस थे, फिर एक बार काका ने जो मुझे सौभाग्य दिया कि श्री माता जी की ज्वेलरी पूरी, आई वॉन्ट यू राजेश, कल आना है आपको कबीला में. काका और हम वो सब ज्वेलरी, मैंने जिंदगी में कभी आदिशक्ति की वो ज्वेलरी और ये सब. सो ड्यूरिंग दैट टाइम, उस टाइम पे उस समय का वो जो ट्विन टावर का इंसिडेंट हो गया था, तो मेरा वीज़ा भी एक्सपायर हो गया था. तो हम श्री माता जी से मिलने गए थे कि आई विल बी गोइंग अर्ली बिकॉज अभी 4 दिन में वीज़ा एक्सपायर हो रहा है. और सबको मालूम है कि गणेश पूजा और श्री कृष्ण पूजा साथ में रहते हैं. तो श्री माता जी नहीं, आई वॉन्ट यू, ये दोनों पूजा करके जाओ. और उस टाइम साउथ अमेरिकन ने श्री माँ का चरणों का पेंडेंट कभी बना नहीं था जो लगाते. तो उस टाइम साउथ अमेरिकन ने श्री माता जी को गिफ्ट किया था, तो श्री माता जी के बेडरूम में था. और मैं श्री माता जी का प्रणाम करने के लिए मैं गया था. तो तब श्री माता जी ने कहा ये पेंडेंट ले लो एंड इट विल वर्क इट आउट. आपको वीज़ा या कितने भी दिन हो कोई पूछेगा नहीं. सो दैट वाज बिग मिरेकल. और वो ऐसे ही हुआ कि इटालियन एयरपोर्ट तो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, और वो देख रहा है मेरे तरफ, मेरे पासपोर्ट को देख रहा है. आई गो होम, ओके, टाइम मार दिया, हो गया. उसके अगले साल फिर से गए थे जब श्री माता जी का जिनुआ नो, माँ का छोटा कासल है. तो उस टाइम हमने माँ के साथ गदर मूवी आई थी, तो साथ में देखा था. उस टाइम भी जब मैं घर निकलने वाला था, तो फिर से श्री माँ को प्रणाम करने गया. तो श्री माता जी ने बेडरूम में बुलाया, बहुत सारी बातें हो रही थी. श्री माता जी बता रहे थे ये पॉलिटिक्स वो पॉलिटिक्स पूरे इंडिया के बारे में. हम तो कुछ माँ के सामने नजर भी नहीं उठा सकते. तो मैं जस्ट चुपचाप बैठा था. मैं था और संदीप भैया का छोटा भाई संजय, वो श्री माता जी के चरण मसाज कर रहा था. श्री माता जी खाना खा रही थी, मैं बस वही देख रहा हूँ कि आदिशक्ति जी कैसे खाना खाती है. इट वॉज माँ को देखना उतने नज़दीक से. तो उस टाइम में बोलते कितना पॉलिटिक्स ये. तो उस टाइम माँ ने बहुत, जो हम सबको समझना चाहिए, कि माँ ने मुझे पूछा कि राजेश मैं कौन हूँ. तो बोलते ऊपर देखो मेरे तरफ. बोला आप हमारी माँ है.
और आप हमारे बेटे हो, आपके और हमारे बीच में कोई है? मैं बोला नहीं, बस सहयोग यही है, इतना सिंपल है। बट हम समझ नहीं पाते जो माँ का और बेटे का या माँ और सहजी का जो रिश्ता होता है इतना सिंपल होता है, कुछ नहीं होना चाहिए इसके बीच में। सो दैट टाइम लाइक इट वाज वो बहुत गहरी बात है। बस इतना बताऊंगा, बाकी के बड़े बड़े एक्सपीरियंसेस है। जय श्री माता। अभी हम लोग इस सेशन की कंक्लूडिंग करते थे। अभी हम लोग ना क्लोजिंग करते हैं, क्योंकि कुछ एक्सपीरियंस सुनने के लिए आपको अगले साल भी आना है। तो हम लोग कैसा लास्ट ईयर भी एक भैया कह रहे थे कि वो जुड़े हुए थे, तो ऐसे ही आते रहे, कारवा बढ़ते रहेगा। और 40-50 एक्सपीरियंसेस है, तो हमने तो सिर्फ 2 सुने हैं, तो अगले के लिए भी कुछ रखते हैं। हम सबके पास खजाना है, वो धीरे धीरे हम लोग उसका आनंद उठाएंगे। तो कंक्लूडिंग करते हैं हम सब लोग एक बार, बहुत जोर से नहीं लेकिन एक अदब से एक जयकारा लेते हैं। बोलो श्री आदिशक्ति माता जी